Hello students, this is your computer lesson, and in last video I have given you some question answers to write in your notebook. They were of chapter 1 and I hope you all have written those questions in your notebook. So today we will start our new chapter, that is chapter 2, hardware and software. So let's start. So in last chapter we have learned what is a computer. A computer is a machine. वो एक स्मार्ट मशीन होती है जो आप यूज़र के इनपुट लेके फिर प्रोसेस करके देन इट गिव्स आउटपुट. सो इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एंड द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड software. So in this chapter we will read these both parts, hardware also and software also. In today's lecture we will learn about hardware and next week we will learn about software. So hardware, what is hardware? The physical parts of a computer that you can touch and feel are called hardware. कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर. और एज लाइक माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, जिन सब चीज़ों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर. कुछ तो सम पार्ट्स आर अटैच टू द सीपीयू बाय केबल्स. कुछ पार्ट्स केबल से अटैच होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस. और सम पार्ट्स आर इनसाइड द सीपीयू. कुछ पार्ट सीपीयू के अंदर होते हैं. सीपीयू, यू हैव सीन द सीपीयू इन योर लैब ना, ब्लैक ह्यूज ब्लैक बॉक्स, दैट इज़ अ सीपीयू. उसके अंदर हार्ड डिस्क एंड सीपीयू चिप, ये पार्ट्स होते हैं एंड दे टू आर हार्डवेयर. So first we have read about computer, then hardware. A computer is made up of two parts, hardware and software. In hardware we will read input, output and storage. Input devices, output devices and storage devices. So let's move on to input devices. Input devices, these are the devices that are used to input words, numbers, sound और pictures into a computer. ये वो devices होते हैं जिनसे आप कंप्यूटर में वर्ड्स, नंबर्स, अपना वॉइस या फिर पिक्चर्स कंप्यूटर में डाल सकते हैं. जैसे कि अगर आप इफ़ यू स्पीक इन अ माइक्रोफोन देन अ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स योर वॉइस, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनपुट. So now we will learn about some examples of input devices. First is track ball. It has a ball on the top. इसके ऊपर एक रेड कलर का या किसी भी कलर का बॉल होता है. To move the pointer we have to roll the ball with finger. जैसे कि आप माउस से पॉइंटर को मूव कराने के लिए माउस को मूव करते हैं, in the same way you have to roll your finger on this ball. So this ball will also roll and pointer will move on the screen. Number 2, scanner. It copies a picture or text printed on a paper into computer. If you put a paper in a scanner and then you close it and start the machine, then पेपर पर जो भी लिखा होता है that is now visible in your monitor. So a scanner जो होता है वो टेक्स्ट जो पेपर पे लिखा होता है उसको कंप्यूटर में एज अ इनपुट दे देता है. So now move on to the next slide. Web camera. It is used to share pictures and have live chats with friends or relatives using internet. Web camera से as like you have a camera in your phone too, so when you do video call to someone, कैमरा से आप शो होते हैं तो लाइव चैट कर सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा. इन द सेम वे मॉनिटर में भी मतलब मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप वेब कैमरा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जॉयस्टिक. इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. ये गेम्स खेलने के लिए ये स्टिक यूज़ होता है. नेक्स्ट माइक्रोफोन. इट इज़ यूज टू इंसर्ट आवर वॉइस एंड साउंड इन कंप्यूटर. आपका वॉइस और साउंड को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए वी यूज़ माइक्रोफोन. लाइट पेन. इट इज़ यूज टू राइट ऑन अ स्पेशल पैड. एक पेन होता है, उससे आप ये इलेक्ट्रॉनिक पैड मिलता है, इस पर लिखते हैं और जो भी आप इसके ऊपर लिखते हैं वो कंप्यूटर पर शो होता है. नाउ वी आर हैविंग आउटपुट डिवाइसेस. We have read about input devices, now output devices. The devices that display the information and results are called the output devices. जो आप input डालते हैं उसका result जो आपको show होता है वो output devices के through show होता है.
लाइक इफ़ यू हैव स्कैन अ पेज विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर, देन वो रिजल्ट शो कहाँ पर होगा? मॉनिटर पे. सो मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइसेस. इफ़ यू प्रिंट अ पेज, देन वो दैट इज़ हार्ड कॉपी, तो वो भी एक टाइप ऑफ आउटपुट एंड इट कम्स आउट फ्रॉम प्रिंटर. सो प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. स्पीकर से अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो म्यूज़िक सुनते किसकी हेल्प से हैं? स्पीकर की हेल्प से वॉइस बाहर आता है. दैट इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस. हेडफोन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ music related device. And projector you must have seen a projector in your school. प्रोजेक्टर से जो डिस्प्ले होता है वो सामने बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर यू कैन सी दिस. सो प्रोजेक्टर इज़ ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. नाउ वी आर हैविंग स्टोरेज डिवाइसेस. जो डिवाइस डाटा स्टोर कर लेती है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू स्टोर डाटा समवेयर, तो वो स्टोर जिन डिवाइसेस में होता है उन डिवाइस को बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर द डाटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा. एग्जाम्पल हैं डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क. डीवीडी यू मस्ट हैव सीन इन योर होम्स, जो एंड अ सीडी ऑल्सो. पेन ड्राइव जो होती है बहुत स्मॉल साइज़ का होता है. फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क. ये भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और ये चीज़ें बहुत पोर्टेबल होती हैं. पेन ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़ एंड यू कैन कैरी इट विथ यू. हार्ड डिस्क जो होता है सीपीयू में अंदर होता है, इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है. फ्लॉपी these days we don't use floppy, but in the earlier time it was used a lot. फ्लॉपी पहले यूज़ होती थी बट अब ये बहुत कम यूज़ होती. So we are done for today. In next lecture we will learn about software. Till then, read all these things carefully, learn about them, understand them, and stay home, stay safe.